Hello students, today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 3 of unit 1, right, that is human reproduction. So when we talk about reproduction, why reproduction is occurring, why it is very necessary, that we need to understand. So in this case, in this video we will understand the importance of reproduction as well as the organs of the male reproductive system, right? And then we will understand entire male reproductive system. So let us start with the chapter number 3. Chapter 3, that is human reproduction. Now students, if you focus on this topic, the first thing comes in our mind, that is reproduction. Now any organism, if they want to continue its own race, reproduction is a process in which offsprings are produced, right? So it is a type of process in which offsprings are produced. So why it is important, you can write to continue its own race, ठीक है, continue its own race, reproduction is very necessary. Now this is a part where an organism produces offspring, right? An organism produces offspring. So students, if you understand the production of offspring, now see, when we talk about the human reproduction, it is a case of sexual reproduction, and that we have already studied in chapter number 1 कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका फ्यूजन होने वाला है. तो दैट इज द मेन प्रोसेस. फर्स्ट इनिशियली इट अंडरगोज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन it undergoes the fusion of the gametes. So we can say human reproduction is a sexual reproduction. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके, एंड देन दैट अंडरगोज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. ओके, यहाँ पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मेल गैमेट जो है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं ओवम. सो यहाँ पर जो होने वाला है उन दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड देन फर्दर इट डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग. सबसे पहला जो सेल बनेगा वो बोलेंगे हम इसको जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. ठीक है, नाउ देयर इज अ टर्म, यहां पर अगर आप देखिए तो जब फ्यूजन होता है तो क्या बनेगा, जाइगोट. जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, राइट. उसके बाद फीटस, फीटस से यंग. तो एक टर्म आती है जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. समझिए इसको, एम्ब्रियोलॉजी. Okay, it is a branch of biology. It is branch of biology जिसके अंदर क्या पढ़ना होता है या फिर क्या हमको सीखने को मिलता है. तो embryology is a branch in which we can understand all the processes which takes place during the formation of or development of fetus, right? Okay, so it is a branch of biology in which study of all processes, right, which takes place during
development of fetus. Okay, this is embryology. Now, if you understand it, that means we are going to definitely study this also, but not in that much detail. It is a class plus 2 class, so we cannot study it totally in detail, but we will try our level best to enhance our education. Now see, there are, if I say about the sex organs, right? So basically there are two types of sex organs. See, primary sex organs and secondary sex organs, whether it is a male or female, both are morphologically, if you see, they are showing dimorphism, right? If I say beard and mustache are the properties of male, but it is not seen in female. Male is more muscular compared to female, right? So these are certain types of dimorphism which are seen externally, right? So if you study various forms, but also the reproductive organs are differing from one another. In case of male it is testis, while in case of female it is ovaries. So these are dimorphism which is seen in the male and female. Now see over here, let's write sex organs. First of all, sex organs. In that we are going to discuss the primary sex organ first, right? So what are primary sex organs? Primary sex organs are those organs which are associated with the formation of the gamete, right? So these organs are associated with the formation of gamete, whether it is male or female, right? So we can say primary sex organs which form gametes. Okay, now see, in this case we are having two types of male as well as female. So these are actually sexes are separate, right? So in such cases you can say, in case of male, primary sex organ is testis, right? So this is the primary sex organ. In case of female, it is ovaries. These are primary sex organ in case of female. Now in testis, which gamete is produced? So it is spermatozoon, right? And in case of female it is ovum. So these are gametes. See students, these are primary sex organ in which gametes are formed. Now secondary sex organs. Secondary sex organs are those organs which helps the passage of this gametes. जो gametes बने उनका passage पास करने के लिए हेल्प करेगा, जिससे कि ये दोनों फ्यूज हो सके, राइट? इट दे हेल्प द पैसेज ऑफ gametes, right? They help the passage of gametes so that they can fuse with one another, okay, with one another. Now this is also differing in male and female. So this secondary sex organs in case of male, let me write over here male, you can write first, that is epididymis, okay. Now second is vas deferens, okay. Then seminal vesicles, then prostate gland and bulbo-urethral gland, and the last one is penis. So these are the secondary sex organs in male. Now in case of female, let me write first, that is
fallopian tube. Okay, fallopian tube. Then it comes to next one, that is uterus, then vagina, and the last one is Bartholin glands. So these are the secondary sex organs in female. Okay, so the place where gametes are formed are primary sex organs, and where the gametes are passed, which helps them to fuse with one another, that is the case called as secondary sex organs. Now we are going to discuss about the male reproductive. So now students, we are going to start the topic, that is male reproductive system, right? So we have drawn the diagram to understand it very nicely. Now let us start with the topic. So if you think about the male reproductive system, it is composed of two things, right? I said as primary sex organ, that is testis, and the accessory ducts and glands, right? So they are included in secondary sex organs. Now talking about the first and very important, that is primary sex organ is testis. So we will discuss about the structure of the testis, where it is located, right? And then what is the function of the testis, that we will see. So first of all, if you think about the testis, these are two testes which are generally a small sized oval shape, pinkish in color, and its size is 4 to 5 centimeter into 2 to 3 centimeter, right? That is the basic size of the testis, right? So if you think about the perfect one, let us see what is testis. Testis is primary sex organ, primary sex organ, right? The shape of the testis is oval shape, right? This is the organ where the spermatogenesis takes place, means sperm formation occurs, that is gamete formation. That is why it is called as primary sex organ, right? Now oval shape, small size, pinkish in color, right? And the size is 4 to 5 centimeter into 2.5 centimeter into 3 centimeter. So this is the basic information of the testis. Now where these testes are located, see इसका जो development होता है वो abdomen में होता है. The development of testis takes place in abdomen, but at the time of birth, this testis, right, this testis development occurs in abdomen, but at the time of birth it descends down through inguinal canal and it gets located in the pouch like structure called as scrotal sac. समझ में आया बच्चों? ये देखिए आप कि ये जो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, एब्डोमेन में, पर जैसे बर्थ का टाइम आता है तो बर्थ के टाइम पर ये टेस्टिस डिसेंड होते हैं वाया इंजुनल कैनाल, दे पास इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटल सेक. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. तो प्रेजेंट इन स्क्रोटल सेक. तो फिर स्क्रोटल सेक के अंदर स्क्रोटल सेक का फंक्शन क्या है वो भी हम देख लेते हैं. इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. स्क्रोटल सेक इज अ pouch like structure. Now what will be the function of this scrotal sac? Scrotal sac, a pouch like structure, this is acting as thermoregulator. Remember, right, it is acting as thermoregulator. देखिए यहाँ पर this is scrotal sac जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, राइट. थर्मोरेगुलेटर इसलिए कि अगर वो एब्डोमेन में ही रहते हैं, याद रखिएगा, इफ दिस टेस्टिस आर नॉट एबल टू डिसेंड, राइट, एंड कम इनटू द स्क्रोटल सैक, अगर वो नहीं आ सके तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेड टू बी क्रिप्टोकोइडिज्म. दैट मीन्स कि उसका फंक्शनिंग नहीं आएगा, राइट, इट विल बी नॉट बी एबल टू फंक्शन एंड समटाइम इट बिकम्स मैलिग्नेंट आल्सो. सो रिमेंबर दिस कि जब भी वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रहता है तो स्क्रोटल सैक,
right, is extending from the lower part of the abdominal wall between the two legs. दो लेग के बीच में जो लोअर एब्डोमिनल वॉल होता है उसमें से ही पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, उसका काम एक ही है कि एब्डोमेन जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका टेम्परेचर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर. सो टू कीप द टेम्परेचर लोअर, राइट, जो उसका टेम्परेचर है वो लो रखे तो ही वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है. यानी कि दिस स्क्रोटल से, राइट, कीप्स the temperature 2 to 2.5 degree Celsius lower than body temperature, right, body temperature से लो रखता है, right. Now see, this is very important क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम होना चाहिए. सो दिस हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, right. To keep the body temperature lower, scrotal sac keeps the temperature lower, which is suitable for the testis to undergo spermatogenesis than the body temperature. रेस्ट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये एक्सटर्नल होते हैं, स्क्रोटल सेक्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, राइट. तो ये जो होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रहते हैं, दिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, याद रखिएगा. ओके, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए है क्योंकि वो टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा कम रखे, जिससे क्या होगा, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. यहां पर क्या आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. भी देखिए कैसे. तो टेस्टिस के अंदर एक फ्लूइड होता है, स्क्रोटल सेक के अंदर एक फ्लूइड रहता है. स्क्रोटल सेक इस हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, just about the scrotal sac. So scrotal sac is filled with tissue fluid called as hydrocele, right, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील. एंड नाउ सी, जो टेस्टिस की इनर लाइन, स्क्रोटल सेक की इनर लाइनिंग है, दिस इज स्क्रोटल सेक. Inner lining is lined by two things. One is a muscle called as dartus muscle and another one is spermatic fascia. So यहाँ पर आप देखिए कि स्क्रोटल सेक का जो इनर लाइनिंग है, स्क्रोटल सेक इज लाइंड बाय डार्टस मसल. याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, डार्टस मसल एंड स्पर्मेटिक फेजिया. ओके, अभी इनर लाइनिंग पर जब इसका लाइनिंग रहता है तो द फंक्शन ऑफ डार्टस मसल इज इन केस ऑफ हेल्पिंग इन थर्मो रेगुलेशन. कैसे, तो विंटर के टाइम पर टेम्परेचर कम रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि टेस्टिस थोड़े बॉडी के नजदीक जाए, और जब समर आता है तो ये रिलैक्स रहता है. क्यों, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, टेस्टिस थोड़े बॉडी से दूर जाए, और यही प्रोसेस की वजह से थर्मोरेगुलेशन होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड टेम्परेचर एंड रिलैक्स इन हाई टेम्परेचर, राइट. सो ये हो गया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज स्क्रोटल सेक. नाउ लेट मी क्लीन दिस, फिर उसका हम कंटिन्यू करते हैं, राइट. वी विल कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्रोटल सेक. चलिए, भी थोड़ा ही बाकी है तो देख ही लेते हैं इसको, कि स्क्रोटल सेक के अंदर अगर आप सोचे, राइट, तो स्क्रोटल सेक इज जनरली फिल्ड विद टिश्यू फ्लूइड. नाउ टेस्टिस इज होल्डेड, और टेस्टिस आर हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू टू थिंग्स. दो चीज की वजह से टेस्टिस स्क्रोटल सेक के अंदर उसकी पोजीशन मेंटेन, एक स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड सेकेंड वन इज द फाइबर्स कॉल्ड एज गुबेर्निकुलम. सो टेस्टिस का जो पोजीशन है वो क्यों होल्ड किया गया है, देयर टेस्टिस आर हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू टू थिंग्स, राइट, बाय फाइबरस गुबेर्निकुलम, राइट,
ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गुबेर्निकुलम, और दूसरा है एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसमें आ जाएगा सभी चीजें स्पर्मेटिक कॉर्ड में आएगी, जैसे कि वास डेफरेंस आप ले सकते हो, फिर आर्टरीज ले सकते हो, फिर वेन्स ले सकते हो और नर्व्स ले सकते हो। ये सब उसकी वजह से टेस्टिस का जो पोजीशन है वो मेंटेन रहता है। सो दिस वाज अबाउट द स्क्रॉटल सैक, राइट। सो सी यू हैव टू फोकस ऑन द टू थिंग्स दैट इट इज टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। स्क्रॉटल सैक का जो फंक्शन है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कैसे होता है कि उसकी जो इनर लाइनिंग है, राइट, इनर लाइनिंग कंटेन्स डायटस मसल, जो कि कोल्ड और कूल एनवायरनमेंट में कॉन्ट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर में वो रिलैक्स करता है। दूसरी एक बात कि ये जो स्क्रॉटल सैक का वॉल रहता है उसमें भी एक मसल रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, राइट। सो जो स्क्रॉटल सैक रहता है, स्क्रॉटम वॉल कंटेन्स क्रीमेस्टर मसल्स, राइट। This muscle elevate the testes, helps in elevation of testes. Okay, so ये हो गया स्क्रॉटल सैक के बारे में। Okay, now we will discuss about the inner structure of the testis, right, और फिर उसके functions। ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, राइट। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमने एक उसका एलएस लिया है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। नाउ सी बेसिकली टेस्टिस इज हैविंग 3 प्रोटेक्टिव कोट, राइट। सो टेस्टिस जो होता है उसके ऊपर कितने प्रोटेक्टिव कोट रहते हैं? टेस्टिस इज हैविंग 3 प्रोटेक्टिव कोट। देखिए अभी मैं सब लिखने वाला नहीं हूं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, राइट। सो टेस्टिस इज हैविंग 3 कोट्स। एक जो है, जो था फर्स्ट वन आउटर मोस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस, राइट, ट्यूनिका वजाइनालिस। ओके, ट्यूनिका वजाइनालिस इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। ये पैराइटल या फिर विसेरल लेयर है, राइट, विसेरल और पैराइटल लेयर। ये देखिए, दिस इज द आउटर वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनालिस। तो यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट कोट, इट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, बट वो कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं रहता है? जहां से डक्ट्स या फिर ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में से निकलती है वहां पर वो नहीं पाया जाता है, बाकी सब जगह वो पाया जाता है, राइट। सेकेंड वन, इनर टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज व्हाइट फाइब्रस कोट, राइट, व्हाइट फाइब्रस कोट। देखिए ये जो है वो है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। नाउ इनर साइड ऑफ द ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो होता है, इनर साइड वो एकदम थिक रहता है। पोस्टीरियर साइड इज थिक टू बिग टू फॉर्म अ वर्टिकल सेप्टम। यहाँ पर देखिए ये सेप्टम बन गए हैं, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट इज thickened to form vertical septum. Okay, vertical septum. These are called as mediastinum septum, right, mediastinal septum। जिससे क्या हो जाएगा, ये देखिए इनर साइड जब वो बेंड होता है, दिस इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो इनर साइड जब उसका थिकनिंग होता है तो उसकी वजह से पूरा टेस्टिस बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। सो दिस डिवाइड्स टेस्टिस इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स। ओके, इससे क्या हो जाएगा, टेस्टिस बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस आर कॉल्ड एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। सो देखिए सबसे बाहर वाला जो है वो है ट्यूनिका वजाइनालिस, जो कि पैराइटल या फिर विसेरल लेयर है, राइट। उसके बाद जो आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज द व्हाइट फाइब्रस कोट। जो उसका पोस्टीरियर पार्ट रहता है, अंदर का पार्ट रहता है, वो अंदर की बाजू सेप्टम बनाता है, राइट। एंड ड्यू टू दैट एंटायर टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी compartments. These compartments are said to be
testicular lobules. Now see, innermost coat is tunica vasculosa, right? Tunica is innermost vascular coat, right? Vascular coat. So this is the innermost vascular coat is referred as tunica vasculosa, right? So see, these are three coats. Now if you think about these coats, तो जिससे कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया की वजह से पूरा टेस्टिस का क्या हो गया, कंपार्टमेंट्स बन गए। तो हर एक कंपार्टमेंट के अंदर हमने बताया कि कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हो सकते हैं, इट कैन बी 250, राइट? सो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके? नाउ सी व्हाट इज द केस। ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके? सो यहां पर हम लिख सकते हैं ईच कंपार्टमेंट contain 1 to 3 seminiferous tubules, right? ओके, सो यहां पर हर एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 seminiferous tubules है। सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। ओके, so these are seminiferous tubules, okay? Seminiferous tubules finally joins to form a straight tubule, right? उसमें से एक straight tubule, ये seminiferous tubule है, उसमें से जो straight tubules निकलेंगे उसको हम बोलेंगे tubuli recti, right? तो ये ऐसे पूरा coiled part रहता है, पर फाइनली वो क्या हो जाता है, straight हो जाता है, right? So this is tubuli recti. Now see, these are seminiferous tubules, these are tubuli recti. This tubuli recti opens into a mediastinum. यहाँ पर वो खुलता है सभी जगह से, राइट? ऐसे सभी जगह से वो ओपन होता है। सभी जगह की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वो एक जगह पर ओपन होती है। तो ये देखिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, राइट, ओपन्स into mediastinum, ओके, बाय ट्यूब्यूली रेक्टी। जो स्ट्रेट पार्ट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का उसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूली रेक्टी। नाउ ट्यूब्यूली रेक्टी व्हेन ओपन्स इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और हाईली नेटवर्क स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस, ओके? दिस इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस, right? This tubuli recti forms a highly network structure of tubule called as tubuli recti, sorry, rete testis, okay? Now this rete testis finally opens into by a 10 to 20 ducts called as vasa efferents। याद रखिएगा कि ये पूरा आपको पाथवे याद रखना है कि भाई हर एक सेप्टम के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, उसका जो स्ट्रेट पार्ट रहता है उसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूली रेक्टी। ट्यूब्यूली रेक्टी सब ओपन होके रेटी टेस्टिस बनाते हैं जो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। रेटी टेस्टिस फाइनली इज ओपनिंग इनटू अ 10 to 20 राइट स्ट्रक्चर्स और ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज वासा एफरेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, वासा एफरेंस। सो उसके बाद राइट यहां से this rete testis opens or from it 10 to 20 vasa efferents extends to किस में हो जाएंगे, एपिडिडाइमिस, ओके? सो दिस वाज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
द टेस्टिस। नाउ व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये हम देखने वाले हैं। हम स्टडी करते हैं द हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, राइट। सो यहाँ पर जब हिस्टोलॉजी की हम बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो उसमें क्या होता है हिस्टोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें कि ये एक जैसे कि टेस्टिस है, राइट। टेस्टिस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा इसको बड़ा करके समझते हैं। दिस इज अ टेस्टिस, राइट। उसके अंदर जो उसका जो कंपार्टमेंट है, उसके अंदर देयर इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, okay. So these seminiferous tubules, right, are having, it is lined or outer surface is made up of white fibrous tissue called as tunica propria. तो seminiferous tubules का जो outer surface है, outer surface, right, is lined by white fibrous tissue, जिसको हम बोलेंगे tunica propria, that is called as tunica propria, ठीक है। इनर सरफेस जो है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। जो इनर सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो इनर सरफेस है वो किससे लाइन किया गया है, लाइन बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ओके, जर्मिनल एपिथेलियम। भी देखिए क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है, इसकी वजह से, राइट, इसके अंदर मेनली कौन से सेल्स पाए जाएंगे, तो उसके अंदर मेनली क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाएंगे, राइट, क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल्स, ठीक है। और दूसरे भी एक सेल है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, राइट, सर्टोली सेल्स। These are columnar cells. They are also present, but they are not as number as of cuboidal germinal cells. This undergo spermatogenesis, right? So this is very important. Now, what is the function of Sertoli cell? So the main function of Sertoli cell is to provide nourishment to developing sperm, right? Provide nourishment, right, to developing sperm, ओके। तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद सर्टोली सेल्स के बहुत सारे दूसरे भी फंक्शंस हैं, राइट। एक जैसे कि ये डेड स्पर्म को फेगोसाइट कर सकता है, राइट। सो यहां पर हम लिख सकते हैं दे फेगोसाइट डेड स्पर्म, दे फेगोसाइट डेड स्पर्म, ठीक है। एक ये हो गया बच्चों कि इसका काम क्या हुआ, फेगोसाइट द डेड स्पर्म, ओके। नेक्स्ट इज दे एक्ट एज ब्लड टेस्टिस बैरियर, एक बैरियर के रूप में भी काम करता है, ओके। एंड इट ऑल्सो सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स, राइट, जैसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। तो कौन सा, तो सिंथेसाइज टू हॉर्मोन्स, सिंथेसाइज इनहिबिन, ये हम देखने वाले, इसका रोल भी देखेंगे हम हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर, राइट। सिंथेसाइज इनहिबिन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट, ओके। ये हम समझने वाले एंटी मुलेरियन हार्मोन भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सर्टोली सेल्स का फंक्शन, सर्टोली साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो सर्टोली नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये डिस्कवर किया था और उसकी वजह से ही उसको नाम दिया गया था सर्टोली सेल्स। उसका दूसरा नाम है नर्स सेल्स और सस्टेंक्युलर सेल्स, राइट। ये दो नाम दूसरे हैं, पर ये जो है वो सर्टोली सेल्स से भी जाना जाता है। नाउ सी द इंटरट्यूब्यूलर स्पेसिस, राइट, यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स थी उनके बीच में भी एक स्पेशलाइज सेल रहता है, राइट। तो
यहाँ पर हम लिखेंगे दिस वाज अबाउट द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. नाउ इन इंटरट्यूब्यूलर स्पेसिस, इन intertubular spaces, special polyhedral cells which are endocrine in nature, right? एंडोक्राइन यानी कि ये हार्मोन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये भी पाए जाते हैं. ओके, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स. इसको हम क्या बोलेंगे? लेडिक सेल्स. इंटरट्यूब्यूलर स्पेसिस ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देयर आर स्पेशल सेल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट. लेडिक इसकी वजह से नाम दिया गया है क्योंकि लेडिक नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेडिक सेल? दे सीक्रेट और सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, राइट. और उसमें भी कौन सा मेन है? टेस्टोस्टेरोन, राइट. तो सिंथेसाइज एंड्रोजन एंड इन दैट मेन इज टेस्टोस्टेरोन, राइट. जिसके अंदर मेन हम बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, एंड दूसरा किसके अंदर? इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. ओके, तो यहां पर ये हो गया लेडिक सेल्स का. ये आपको तीनों को अच्छे से याद कर लेना है बच्चों. अभी देखिए कि सर्टोली सेल्स जो है वो एक और चीज कर सकते हैं. सर्टोली सेल्स कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन. याद रखिएगा, सर्टोली सेल्स कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन. और वो क्या किसमें हेल्प कर सकते हैं? इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं पर आपको नोट डाउन करना है. सर्टोली सेल्स कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन एंड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? जैसे कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है तो टेस्टोस्टेरोन मूव्स बाय डिफ्यूजन. टेस्टोस्टेरोन डिफ्यूजन से जाता है, राइट. एंड बाय द हेल्प ऑफ एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, राइट, इट हेल्प्स इन प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट. दूसरे एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी के बुक में, वो आपको याद रखना है कि नेचुरली competent immunological competent cells are also present. This you have to remember. Okay, कौन से? In the testes you can also found immunological competent cells. So this was all about the histology of the testes. दूसरी एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, आप सोचिए कि अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, राइट, this Sertoli cells, right? Okay, so in this Sertoli cell stimulates the secretion of the certain factors, right? Under the effect of Sertoli cells there is secretion of certain factors which helps in spermatogenesis or which promotes the spermatogenesis. Thank you.